Now I am going to start chapter 5 playing with numbers. टॉपिक है नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड फॉर्म में नंबर हम कैसे लिखते हैं, इट इज़ नॉट न्यू फॉर यू, यू हैव बीन ऑलरेडी नोन टू दिस फैक्ट। हाउ कैन वी राइट द नंबर इफ वंस एंड टेंस डिजिट आर नोन? फॉर 2-digit number 10y plus x, where y is at tens place and x is at ones place. Okay. Similarly, you can write here for 3-digit number 100 place पर z है, tens place पर y है, ones place पर x है, तो प्लेस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई 100x plus 10y plus x. This is how you can write 4-digit number, 5-digit number on the basis of place value of the number. Okay, so let us see exercise 5 में। वंस डिजिट कोई नंबर 2-digit नंबर है, वंस डिजिट जो है 3 है, लेट x बी टेंस डिजिट, x जो है मान लिया कि टेंस डिजिट है, therefore नंबर रिक्वायर्ड इक्वल टू 10x plus 3 according to this principle. Okay, now according to question, sum of digits 7 times the sum of digits is equal to the required number. Therefore we can constitute an equation 7 into 3 plus x equal to 10x plus 3. This will become 21 plus 7x equal to 10x plus 3, and by solving it we get the value of x equal to 6. Okay, now you can write the number 10x plus 3, 10 value of x is 6 plus 3, this will become 10 6 60 plus 3 63. Okay, let us see question number 2. Let x be tens digit, ones digit equal to 2x. Ones digit is twice the tens digit, तो ones digit का नंबर जो है और टेंस डिजिट के नंबर से ट्वाइस है, 2 गुना है। Therefore you can write here 2x. Number equal to 10x plus 2x. Okay, you can get 12x equal to 12x. Sum of digit कितना हो जाएगा? 2x plus x, 3x, and according to question this minus this, यानी नंबर में से अगर उनका सम घटा दिया जाए तो हमें 18 मिलता है। यू कैन इक्वेट 12x minus 3x equal to 18, 9x equal to 18, therefore x equal to 2. Therefore you can write here the number, required number equal to 12x, 12 into 2 equal to 24. Okay, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। A 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of digit. कोई नंबर है जिसका 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of digit, और नंबर का 3 गुना जो है उसके डिजिट के सम का 4 टाइम्स के बराबर है। If 18 is added to the number, अगर 18 जो है उस नंबर में जोड़ा जाता है, डिजिट्स आर रिवर्स, तो नंबर का डिजिट जो है रिवर्स हो जाता है। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर, तो लेट x be ones digit and y be tens digit, therefore you can write the number 10y plus 10. This is your required number.
If the value of y and x are known, then you can find out the number. Okay. Now according to question, 3 plus number equal to 4 into sum of digits. This has been given. We shall use it. 3 plus, this is the number 10y plus x equal to 4. This is the sum of the number y plus x. By solving it, you get a relation 2y minus x. This is equal to minus 1. Let us consider it as first equation. Now come to another part. कह रहा है कि नंबर में अगर 18 जोड़ा जाए तो डिजिट जो है रिवर्स हो जाता है नंबर का. तो 10y plus x, this is original number. I have added 18. This is equal to, this is the number which is obtained by the reversing the digit 10x plus y. By solving it, you can get the value of y equal to 1. Now this is your 9y minus 9x equal to minus 18. 9 से डिवाइड कर सकते हो दोनों तरफ, छोटा हो जाएगा रिलेशन. y माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 2. 9 हो गया 9, 9 हो गया 9, 9 टू जा 18. तो ये दिस इज योर सेकेंड रिलेशन. नाउ फर्स्ट रिलेशन इज हियर, आई हैव रिटन इट बिलो of the second equation, my 2y minus x. अब subtract equation number 1 from equation 2 by subtracting. Change the sign. सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है. ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया. ओके. नाउ x cancel and this will become minus y equal to minus 1. By multiplying by minus 1 in both sides, you get y equal to 1. Now you can find out the value of x. Put y equal to 1 in equation first. Then you get 2 into y minus x equal to minus 1. This will become 2 minus x equal to minus 1 and x equal to plus 3. ये इधर आ गया, ये इधर चला गया. x का वैल्यू 3 आ गया. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y in this you can find out the required number. 10y plus x, 10 into the value of y equal to 1, value of x equal to 3, and this is how you get answer 13. Okay. Question number 4. The sum of digits of 2-digit number is 15. 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट का सम जो है 15 है. द नंबर obtained by interchanging. अगर नंबर जो है, अगर डिजिट जो है इंटरचेंज हो जाता है, यानी वंस के प्लेस पर टेंस वाला डिजिट चला जाता है, टेंस के डिजिट पर वंस का डिजिट चला आता है, तब क्या होता है? obtained by its digit is 63. Interchanging digits exceeds the given number by pi. जब डिजिट को उलट करके लिखा जाता है तो वह नंबर जो है पहले वाले नंबर से 9 बड़ा होता है. तो हम लोगों को नंबर निकालना है. तो लेट अस कंसीडर x be ones digit, y be tens digit. Therefore required number equal to 10y plus x. If the value of x and y are known, then by putting the value of x and y in this relation, we can find out the number. Okay. Now according to question, sum of digits equal to 15. Therefore you can write y plus x equal to 15. This is equation number 1. Now
नाउ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद नंबर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। वो टेंस की जगह पर वंस का डिजिट आ जाएगा, वंस के जगह पर टेंस का डिजिट चला जाएगा। तो सिमिलरली ऑटोमेटिकली द नंबर विल बी 10x प्लस y। ये नंबर मिला हमको जब डिजिट को हम उलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x, दिस इज नंबर ऑफ 10 रिवर्सिंग द डिजिट and this is your original number. Okay, according to question this minus this has been given 9. Okay, 10x plus y, ये ब्रैकेट ओपन किए, 10y minus x equal to 9 and you get 9x minus 9y equal to 9. Divide by 9 on both sides, you get x minus y equal to 1. 9 से डिवाइड किए x हो गया, इसको 9 से डिवाइड किए 1 हो गया, इसको डिवाइड किए 1 हो गया। तो दिस इज योर रिलेशन 2, ये रिलेशन 2 हो गया, ये रिलेशन 1 है। ओके, ये दोनों को ऐड कर दो, बाई एडिंग 1 एंड 2 वी गेट y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, 2x equal to 16, x equal to 8. Okay, now put x equal to 8 in equation 1, then you can write here y plus 8 equal to 15 and y equal to 7. So this is the value of x and y, both are known and you can write the original number. Original number is 10y plus x. Put the value of y and x, 10 into 7 plus 8, this will become 78. Okay. Question number 5, I am reading the question. The difference between two-digit number and the number obtained by reversing digit is 63. What is difference between digits of the number? दो डिजिट का नंबर है, उसको जो है नंबर लिखना है और जब उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो दोनों नंबर का डिफरेंस जो है 63 हो जाता है। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। तो दोनों हमको निकालना है कि दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना हो। मान लिया लेट x be 1's digit, y be 10's digit, therefore number obtained equal to 10y plus x. Okay, now number obtained when digits are reversed. अब नंबर को प्राप्त कीजिए, ऑब्टेन करो जब डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है। ऑटोमेटिकली वंस के प्लेस पर टेंस का डिजिट चला जाएगा, टेंस के प्लेस पर वंस का डिजिट आ जाएगा। ओके, तो 10x हो जाएगा प्लस y, इसका ठीक उल्टा हो गया। ये ओरिजिनल नंबर हुआ। जब नंबर हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं देन वी गेट दिस नंबर। ओके, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y, इसका और इसका दोनों का अंतर दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 63। नाउ सॉल्व इट, 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 63, दिस विल बिकम 10y माइनस y 9y, 10x plus x, this will become 9x, this is equal to 63. Divide by 9 on both sides, you can get y minus x equal to 7. What is this? This is quantity which we want to find it out. ये वही क्वांटिटी है जिसको हम लाना चाहते हैं। This is difference of digits, y minus x equal to 7.
thus you can write difference of digits equal to 7. Answer हो गया. Now come to the question number 6. I am reading the question. In 3 digit number, 3 digit का नंबर है. The tens digit is thrice the units. जो टेंस का डिजिट है वह वंस के डिजिट का थ्राइस है, 3 गुना है. 100 के प्लेस पर जो डिजिट है वह वंस के डिजिट का 4 टाइम्स है. तो मान सकते हैं आप, मान लिया कि लेट वंस बी डिजिट एट वंस प्लेस एक्स, देयरफॉर टेंस डिजिट इक्वल टू 3x. ये इसका 3 गुना है 3x. 100 डिजिट जो है 100 डिजिट जो 100 डिजिट 100 के प्लेस पर है वह वंस के डिजिट का 4 टाइम्स है. तो दिस इज इक्वल टू 4x. ओके. नाउ अब कह रहा है कि डिजिट्स ऑल्सो द सम ऑफ डिजिट इज 16. अब ये सभी डिजिट का सम जो है दिया हुआ है, तो फाइंड इट आउट. x plus 3x plus 4x 8x. According to assumed digits, we have sum of digits equal to 8x. क्वेश्चन में दिया हुआ है यही चीज 16 के बराबर. तो दिस इज हाउ यू कैन राइट हियर 8x equal to 16 and the value of x equal to 2x. Okay. Now you can write the required number. 100 के प्लेस पर है उसको 100 से गुणा करो, टेंस के प्लेस पर है उसको 10 से गुणा करो, वंस का प्लेस है उसको ज्यों करते हुए रखो. तो 100 इंटू 4x ये आपको 100 के प्लेस पर का डिजिट है, इतना लिख दिए. ये टेंस का डिजिट है 10 इंटू 3x प्लस x. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x. 100 into 4 into 2 plus 10 into 3 into 2 plus 2. This will become 800, 60 and 2. If you add them, then you get 862. This will be your answer. Okay. So this is how we have completed exercise 5A. Now I am going to start 5B. This exercise is based on divisibility rule. You know it from lower classes also. I am revising it. Divisibility by 3. If the sum is divisible by 3, then the given number is divisible by 3. अगर कोई भी नंबर के का डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है. ओके. उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 9. द सेम रूल. इफ द सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9 देन द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी बाय 5. अगर कोई नंबर है उसके वंस प्लेस पर 0 है या 5 है, 0 या 5 है तो वह 5 से डिवाइड हो जाता है. ओके. डिविजिबिलिटी बाय 10. डिविजिबिलिटी बाय 10. 10 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अंत में वंस के प्लेस पर 0 रहना चाहिए. देन इट इज डिविजिबल बाय 4. सॉरी divisible by 10. Divisibility by 7. 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 2 डिजिट यानी वंस और टेंस ये दोनों के डिजिट मिल करके जो नंबर बनाते हैं, अगर वह लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, नंबर शो ऑफ 10. इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 then the whole number is divisible by then the given number is divisible by 4. यानी लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है. उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय टेंस. 100, टेंस और वंस ये तीनों प्लेस का डिजिट
मिल करके जिस नंबर को बनाते हैं, अगर वह नंबर जो है 8 से डिविजिबल है तब दिया हुआ नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 3 डिजिट लास्ट 100 टेंस और वंस, इन तीनों के डिजिट को देखना है जो नंबर बनता है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और है रूल, यू कैन गो थ्रू इट। एंड एक्सरसाइज 5B में जो है आपको 10 तक जो है आपको खुद जो है हम बनाने के लिए दे रहे हैं। यू हैव टू टेस्ट वेदर डिविजिबल बाय 2, 5, 10, 9, 4 एंड सो ऑन। तो बाय ऑब्जर्विंग the divisibility rule you can do it yourself. Now I am doing question number 10, 11, 12 and so on. Okay, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दिया हुआ है 7x3, इसमें x का वैल्यू ऐसा निकालना है जो ये 3 से डिवाइड हो जाए। सर्टेनली डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। आई हैव फाउंड आउट द सम 7 + x + 3, 10 + 3, 10 + x। अब इसमें ऐसा 10 में क्या क्या जोड़ने पर वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो देखो 2, अगर 10 में 2 जोड़ देते हैं तो 12 हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3। 10 में 5 जोड़ देते हैं तो डिविजिबल बाय 3। 10 में 8 जोड़ देते हैं 18 हो गया, इट इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर possible value of x will be 2, 5, 8. अब numbers you can write, put the value 100 into 7 plus 10 into 2 plus 3, this will be equal to 723। फिर 100 into 7 plus 10, दूसरा वैल्यू 5 रख दिए x का plus 3, this will be equal to 753। फिर उसके बाद थर्ड नंबर हो गया 7, 100 into 7 plus 10 into 8 वैल्यू रखे x का plus 3, this will give you 783। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है 5, 3, y1, this has been given। You have to find out the value of y such that it should be divisible by 3। तो पहले सम निकाल दिए, 5 + 3 + y + 1, this will be equal to 9 + y। अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y क्या हो सकता है, ये तो 9 है, 3 से डिविजिबल है, तो पॉसिबल वैल्यू 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ोगे 12 होगा, डिविजिबल बाय 3। 9 में 6 ऐड करोगे 15 हो जाएगा, इट इज डिविजिबल बाय 3। 9 में 9 ऐड कर दोगे 18 हो जाएगा, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। एंड नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू दोज नंबर्स। तो ये प्लेस वैल्यू के अनुसार हम मल्टीप्लाई करते गए हैं, 1000, 100, ये 0 वैल्यू दिए हैं x का, और 10 का वैल्यू ये +1, तो ऐड करोगे ये विल गेट 5301। सेकेंड नंबर हो जाएगा 5 × 1000 + 3 × 100 + 10। तीसरा वैल्यू हमारा
3 है, सॉरी दूसरा वैल्यू 3 है +1, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, सबको ऐड किए तो 5331। थर्ड वैल्यू है 500 हो जाएगा, 5000, ये 300, ये 10, y का वैल्यू हमने ये तीसरा वैल्यू 6 रखा, ये +1, तो simplifying it you can get 5361. Similarly you can find out fourth value 5000 plus 3000 plus 300 plus 10 90 plus 1, and if you add them then you can get 5391. So this is how by doing in this way you can find out you can do the question number 13, 14 and 15. Okay, that's all. Thank you.